So realization account will be prepared first of all to realize all the assets of the firm, unrecorded assets of the firm, and also any cash inflow, and also to pay all the debts, all the liabilities of the firm, and to distribute profit or loss of realization amongst the partner in the old ratio. In the old ratio, realization of assets and liabilities से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में will be either credited or debited. Whenever realization will take place of the assets and liabilities, there are only two possibilities: either there will be profit or there will be loss. So as I told, the credit side of realization, first of all, the first thing which you will write on the credit side of realization account are all the liabilities from the balance sheet. Liabilities from the balance sheet and all outside liabilities. All outside liabilities. Outside liabilities का मतलब है जैसे creditors, bill payable, bank loans, right? Or a loan from partner's wife, not from partner loan नहीं, loan from partner's wife, etc. Right? But there are certain things, certain liabilities which you will ignore, which will not be recorded in the credit side of the realization account. What are those? Look at the format. In bracket it is given excluding. Excluding. You will not write credit balance of profit and loss account. In the liability side there is profit and loss account. There are accumulated profits. Accumulated profits. Accumulated profits. Accumulated profits like general reserve, reserve fund, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve. All the accumulated reserves, accumulated profits will be ignored. Mind it, will be ignored. They will be shown in the capital account. They will be shown in the capital account. Capital account में partners को distribute किया जाएगा. Realization account में उसे show नहीं करेंगे. These are shown on the liabilities side, but these are accumulated reserves and profits. So they need to be distributed to the partners because they have worked for it, because they have shed sweat to earn this. तो ये उनका है, ये उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा. Everybody getting? Archie, where are you? Also, yes, sir. Loan from partners. अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है वो भी आप यहां पर शो नहीं करेंगे. If partners have given any loan to the firm, that too will not be recorded in the realization account. उसके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, and we will pay them separately, not here. तो क्या क्या चीजें नहीं आएंगी हरविंदर सिंह? What are the items which will not be shown, Harvinder Singh? Accumulated profits. Accumulated things are like accumulated profit. ध्यान से नोट कर लीजिए. All accumulated profits and reserves. नाम से बता रहे हैं तुम्हें. General reserve, reserve fund, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve.
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल दी होती है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, वो भी नहीं लिखेंगे। करंट अकाउंट अगर कोई दिया वो भी नहीं लिखेंगे। लोन फ्रॉम पार्टनर वो भी नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? ओनली आउटसाइड लायबिलिटीज। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ और अदर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि वो भी आउटसाइड में काउंट होगा, राइट। और आपका जो सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी, वो चीजें लिखेंगे और ये चीजें इग्नोर कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन ऑन एनी असेट। प्रोविजन ऑन एनी असेट, नॉर्मली आपने देखा होगा प्रोविजन ऑन डेटर्स दिया होता है, डेटर्स 50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। दैट प्रोविजन यू विल राइट द सेकेंड वन। पहला क्या लिखेंगे? ऑल लायबिलिटीज, वो एक ही आइटम है, ऑल लायबिलिटीज, उसमें कई लायबिलिटीज आएंगी। जब आप यहां पर लिखेंगे तो आप लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय बैंक लोन, बाय एस वाइफ्स लोन, इस तरीके से, बाय बिल्स पेबल, ये सारे आइटम उतार दिए बैलेंस शीट से। फिर आप लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000, 2,000, इस तरीके से। ये दूसरा आइटम हो गया। नंबर 3, बाय बैंक अकाउंट और बाय कैश अकाउंट। यहां पर क्या लिखना है आपने? जितनी भी असेट्स बैलेंस शीट में शो हो रही होंगी, टेंजिबल असेट्स, एडजस्टमेंट्स में ये दिया होगा आफ्टर सेलिंग दोज असेट्स व्हाट अमाउंट इज रियलाइज्ड इन कैश, वहां लिखा होगा डेटर्स 50,000 रिसीव हुए, असेट रियलाइज्ड, वहां लिखा होगा डेटर्स 50,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 20,000, मशीनरी 45,000। आपको ये सारे अमाउंट उतारने, जो जो पैसे उन असेट्स को बेच के आपको रिसीव हुए, क्योंकि ये हमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड इनकम साइड है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सबसे पहले हमने लायबिलिटीज को क्या किया? राइट ऑफ किया। तो हमने लायबिलिटीज को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में। प्रोविजन को राइट ऑफ किया, एक प्रोविजन आपने क्रिएट किया था डेटर्स पे कि 5,000 डेटर्स, 50 में से 5,000 डेटर्स क्या होंगे? हमें नहीं मिलेंगे। अब हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं, इट मींस हम उसे रोल बैक कर रहे हैं, मिलेंगे मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ? फायदा ऑन द क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद असेट्स बेच के जितने पैसे आपको रिसीव हुए, वो आपको नीचे एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, किस असेट को बेच के कितने पैसे मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, वो सब लिखा होगा उसमें। और जिसमें नहीं लिखा होगा कि असेट को बेच के कितने पैसे मिले, तो आप मान लेंगे जितने के असेट है उतने ही मिले। वैसे कोई लायबिलिटी है, उसमें नहीं लिखा है कि उस लायबिलिटी को आपने कितने पे किए, तो मान लेंगे जितना लिखा है उतने ही पे किए, द वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट। तो तीसरा आइटम जो है क्रेडिट साइड पे, वो क्या है? रिसिप्ट ऑफ कैश बाय सेलिंग ऑफ असेट्स। तो उसमें बहुत सारी असेट्स के नाम आएंगे, वहां पर आप लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे असेट रियलाइज्ड, और फिर नाम लिखेंगे स्टॉक, डेटर, प्लांट, फर्नीचर। नेक्स्ट आइटम आएगा आपका अनरिकॉर्डेड। कुछ असेट्स होती हैं जो बैलेंस शीट में तो शो नहीं हो रही असेट्स, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में शो होंगी, that there was a typewriter which was not recorded in the books of account, now it is sold at rupees 2,000, unrecorded asset। तो आप वहां पर लिखेंगे बाय बैंक फिर से, और ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, उसके मिले हमें 2,000। ये आ गया। नेक्स्ट है सर यस सर ये जो अनरिकॉर्डेड असेट्स होंगी, इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होगी उसमें? यस नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन होगा कि कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, जो कि अब हमें पता चली है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म। 31 मार्च को उसे बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करने से चूक गए थे, ओमिशन ऑफ एंट्री हो गई। अब वो
जब आप बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, तो आपको अब पता चला कि these are the assets which were not recorded in the books of account, so now they can be realized and the amount can be recorded. तो फिर से आएगा बैंक, अब की बार आप ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड असेट, नाम भी लिख सकते हैं उसका टाइपराइटर, और एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री क्या हो रही है इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी क्रेडिट में एंट्री हो रही है, इसकी जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5000 टू रियलाइजेशन। जितने भी लायबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर आपकी अनरिकॉर्डेड असेट आई टाइपराइटर, आपको मिले 5000 रुपए। बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में नरेशन में लिखेंगे टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर सोल्ड, या कैश रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर। जनरल एंट्री भी साथ साथ इसको नोट करते रहेंगे। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, दैट द जनरल एंट्री ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट जो इसके पीछे पेजों में दी हुई है, यू शुड गो थ्रू एंड ट्राई टू सी दैट कैसे करना होगा। फिर लास्ट है इसमें, वो फिफ्थ आइटम जो आपका क्रेडिट साइड में आएगा, वो है आपका पेमेंट। इफ एनी पार्टनर हैज टेकन सम असेट, कई बार क्या होता है रियलाइजेशन के टाइम पे, क्योंकि फर्म क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है, किसी पार्टनर को कोई आइटम जो है अच्छा लगता है, कोई असेट उसे पसंद आती है, तो वो कहता है ये मैं ले जाता हूँ, ये फर्नीचर सोफा सेट मुझे बड़ा पसंद है और मैं इसे ले जाने जाता हूँ, मुझे जरूरत भी है। कोई कहता है मुझे मोटरसाइकिल दे दो, कार, कोई जो है एसी, क्योंकि फर्म तो वाइंड अप हो रही है। जब पैसे वो असेट्स जब अपने घर ले जाएंगे, तो हमें वो पैसे उनसे क्या करने पड़ेंगे, रियलाइज करने पड़ेंगे, पैसे उनसे देने पड़ेंगे। तो हम उनके कैपिटल अकाउंट में उतना अमाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट 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 नॉट क्रेडिट, डेबिट। असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, जनरल एंट्री है उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। यहां पर आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए बी हैज टेकन ओवर फर्नीचर वर्थ 50,000, तो जनरल एंट्री होगी उसकी 20 कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय 20 कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना फर्नीचर टेकन ओवर, ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर टेकन ओवर, राइट। ये 5 आइटम फिर से नोट कीजिए। क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट 5 थिंग्स। Harvinder Singh and Amit Singh, look here. Harvinder Singh, number 1 item, all liabilities you will write first. Number 2, provision for doubtful debt. Number 3, asset realized by bank. Number 4, unrecorded assets. Number 5, part asset account because asset is taken over by the partners. ये 5 आइटम अगर आपको समझ में आ गए क्रेडिट साइड के, तो डेबिट साइड में बिल्कुल इसके अपोजिट चलेंगे। क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम लायबिलिटीज, डेबिट साइड फर्स्ट आइटम असेट्स। ऑल द असेट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट हियर एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द असेट्स, एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द, क्या क्या नहीं लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे, कैश छोड़ देंगे, क्योंकि उसके लिए कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं लिखेंगे, जैसे उधर क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा था। बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, लॉस वो नहीं लिखेंगे, राइट। यू विल ऑल्सो नॉट राइट डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, एंड ऑल्सो यू विल नॉट राइट लोन टू पार्टनर्स। जो भी लोन टू पार्टनर्स होगा वो हम उसके पार्टनर्स अकाउंट से जो है ले लेंगे। बैलेंस शीट की असेट साइड में जो ये असेट्स दी होती हैं, उनमें से ये चीजें आप नहीं लिखेंगे, ना लॉस लिखेंगे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट, विल नॉट राइट ऑल दीज थिंग्स। आप कौन सी असेट्स लिखेंगे, इसका मतलब टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल
land, building, plant, machinery, furniture, data, these type. The assets excluding these assets जो अभी आपको बताई, cash, bank, debit balance of profit and loss, all the debit balance of partners capital account or current account, and accumulated losses. You will not. पहला आइटम खत्म हो गया. नंबर 2, amount paid for discharging liabilities. आपने पे किया होगा लाइबिलिटीज को देने में, उसमें लिखा होगा नीचे एडजस्टमेंट में कि क्रेडिटर्स को इतने पे किए, बिल पेबल के इतने पैसे पे किए, बैंक लोन के इतने पे किए, तो वो सारे अमाउंट आप यहां पर लिखेंगे. क्या लिखेंगे? टू बैंक. जनरल एंट्री क्या हो रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. और असेट के नाम आप नरेशन में लिखते हैं. यहां पर आप नाम लिखेंगे असेट का, टू बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे लायबिलिटीज पेड, और नीचे लिखेंगे असेट्स के नाम, सॉरी लायबिलिटीज के नाम, कौन कौन सी लायबिलिटीज के, व्हाट अमाउंट हैव यू पेड. सो यू हैव पेड क्रेडिटर्स इतना, ये इतना, ये इतना, टोटल ये आ गया. नंबर 3, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर कोई है तो उसके लिए आपने कितना पेमेंट किया. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट की वैसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. तो अनरिकॉर्डेड को लायबिलिटी है कि 5,000 क्रेडिटर तो लिखते ही, सो नाउ दे हैव टू बी पेड. या कोई केस चल रहा था, उसके पेमेंट हमें आप करनी पड़ रही है, तो वो आप लिखेंगे उसमें, दैट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. तो आप वहां पर लिखेंगे टू बैंक. फिर आप लिखेंगे ये जो सारी प्रोसेस होती है, रियलाइजेशन की प्रोसेस लंबी प्रोसेस होती है, इट इज लॉन्ग प्रोसेस टू मेक एडजस्टमेंट, टू मेक द डील्स विद द पीपल अराउंड, और सामान सारा बेचना, पे ऑफ करना. सो ये सारी रियलाइजेशन प्रोसेस का कुछ खर्चा होता है, वो भी नीचे क्वेश्चन में दिया होगा. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000, 15,000, 20,000. तो आप लिखेंगे 10, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000. 4 आइटम हो गए. लास्ट आइटम बचा, अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी पे करता है, कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करता है, जैसे उधर पार्टनर असेट ले जा रहा था अपने घर, तो कोई ये भी कह सकता है वो मिस्टर एक्स के जो पैसे हैं या बैंक लोन जो है 50,000 का, वो मैं पे कर दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर दो. 50,000 है, मैं वहां पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे अभी जो है पेमेंट कर दो. सो व्हेन अ पार्टनर विल टेक ओवर द लायबिलिटी, his account should be credited. His account should be credited. तो जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन यू विल सी टोटल दोनों साइड में 5-5 आइटम हो गए. मेजर 5 आइटम, 5 चीजें मैक्सिमम क्रेडिट साइड में आती है, 5 चीजें मैक्सिमम डेबिट साइड में आती है. क्रेडिट साइड में जितनी चीजें आ रही हैं उससे सारा पैसा हमारे पास आ रहा है. क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में हम सारी पेमेंट कर रहे हैं. तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट इज प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, इट इज लॉस. जो भी प्रॉफिट लॉस होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लॉस होगा डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा ऑन द क्रेडिट साइड. Are you getting? Yes, sir. This is the format of realization account. एक बार फिर से उसको अच्छी तरीके से देखिए. And if you have any doubt, what to write, how to write, what are the items to take, you just ask. I give you 2-3 minutes and I pause recording for the time period.